Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about Leo Ascendant and how the month of August 22 is going to pan out for the Leo Ascendant people. Let us first start by looking at the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Sun is navigating through the 12th house. So when you look at this kind of a position in a birth chart, it indicates people who have devoted themselves to charities or for the social cause. So, a lot of doctors or social workers or people who spend their whole time in the service of others, they have such kind of a configuration in their birth chart. In this case, if you are able to associate yourself with foreign entities, for example, you are working with an MNC or you are currently staying in a foreign location, then this will be a good time for you. So, the idea when the ascendant lord moves through the 12th house is to utilize the negative energies of the 12th house. So, if you associate yourself with charities or donate to hospitals at this point of time, or if you happen to get associated with some kind of a foreign entity, then this time frame will work out good for you. Otherwise, till the time sun is placed here till 16th of August, it will be a difficult time for Leo ascendant people. They will feel isolated, lonely, and there are also a very high probability that they'll end up taking wrong decisions. So they should avoid taking crucial decisions till the 16th of August. One also has to look at the fact that Venus, who is also the lord of 10th house or action, is also posited in the 12th house. So what it means is that people may get opportunity to travel to a foreign country on account of their work. They may travel for professional reasons to a foreign country, and both the ascendant lord and the 10th house lord located in the 12th house means that people who were planning to go to a foreign country for settling down, or as we call it as for immigration, may also succeed in the month of August. Now let us look at another planet, which is Jupiter. Jupiter is currently transitioning through the 8th house and it is also the owner of the 5th house. So 5th house lord passing through the 8th house would mean that you should not take risk in the stock market in the month of August, but the first week of August, especially from 3rd to 6th of August, is very good for the other significators that are indicated by 5th house. So, if you are planning to propose to someone or if you are looking for asking someone out, then 3rd to 6th of August is a very good time frame for getting into a new relationship. Students will have to put extra effort to succeed throughout the month of August because this position of fifth lord transitioning through the eighth house is not considered very good from the studies point of view unless they are studying the subjects that are related to eighth house, which happen to be research oriented lines. Let us also look at Mercury. Mercury is passing through the first house and it happens to own both the second house as well as 11th house. So both the money associated houses, second house shows self-earned wealth and 11th house shows gains. It owns both these houses and is currently stationed in the first house. What it means is that you are going to earn money through the lot of emphasis on your actions. You may also see money inflow coming from your family members, or you may get help from your friends, because both these houses indicates these people that are associated with you. It also showcases that you can earn through the brokerage or commission route, because that is the significator of Mercury. Are a public speaker, then chances are that you will get a very good public speaking assignment at this point of time. We will also look at Mars. Mars is currently transitioning through the 10th house and Mars gets the directional strength in the 10th house. So if Mars is strongly posited in your horoscope, for Leo ascendant people, Mars is considered a very strong planet because it owns a trine, which is the ninth house, and a quadrant, which is the fourth house. And right now, Mars will also be aspecting its own house, which is the fourth house, through seventh aspect. So this placement of Mars will work very well for people who are associated with the significators indicated by Mars. So if you have a property related business or profession, or if you are into specialty chemicals or petrochemicals or fuels, then this transit of Mars
will provide you with a lot of boost on you in your work arena till the time Mars is posited here, which is from 10th of August to 15th of October. Then there are also certain dates when a person needs to be careful in the month. So the dates for Leo for the month of August are 7th to 8th of August, 15th to 16th of August, and 28th to 29th of August. So barring these 6 days, when Moon is passing through the 6th, 8th, and 12th house, the rest of the month will work out very well for the Leo ascendant people, especially the later half of the month. If you're not associated with any foreign entity, charitable institutions, or hospitals, then you need to be cautious during the first half of the month, which is from 1st to 16th of August. But the later half of the month, from 17th to the end of the month, will certainly prove to be very fruitful for the Leo ascendant people. Let us also look at the sixth house lord. Sixth house lord Saturn is right now posited in the sixth house and will be directly aspected by Sun till 16th of August. Therefore, all the people who are in service or job will face issues till 16th of August. Leo people have a very peculiar kind of a configuration that all the fixed signs fall in the quadrant, and quadrant happen to be the most powerful houses in the horoscope. So Leo ascendant people should not frequently change their jobs because this is something which goes against their very basic nature or the energies that are indicated by the horoscope. So within the month of August, 21st to 23rd of August will still be a better days for people who are in the job. In the first half of the month till 16th of August, they will certainly get into conflict with people in the higher authority, because Sun not only showcases your father, it also showcases your superior or people who sit higher in the hierarchy in an organization. So please be very careful about dealing with them in the first half of August. Overall, this is a good month for the Leo ascendant people. So if you have liked my analysis, please do like this video and also subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसे साबित होगा। देखिए, सबसे पहले हम लग्न स्वामी को देखते हैं। लग्न स्वामी सूर्य 12वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं और ये 16 अगस्त तक 12वें भाव में ही बैठे रहेंगे। 12वां भाव एक नेगेटिव ऊर्जा वाला भाव कहलाता है कुंडली में। इस भाव से आप जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का नुकसान होना, फॉरेन भ्रमण, या ऐसी एलियन या अनजान चीज़ें जिनके बारे में हमें पता नहीं होते या जिनसे हमें डर लगता है, अस्पताल, जेल या एकांतवास, ये सारी चीज़ें हम 12वें भाव से देखते हैं। जब भी लग्न स्वामी 12वें भाव से निकलता है तो व्यक्ति को लगता है कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया है। कई बार लोग इस तरह की स्थिति में डिप्रेशंस में चले जाते हैं अगर लग्न स्वामी 12वें भाव में बहुत लंबे समय तक रहे तो। और आप अगर अपने आप को इस स्थिति में भी अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको 12वें भाव से जुड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है। यानी अगर आप 16 अगस्त तक अपने आप को किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ लें, क्योंकि चैरिटी या दान धर्म भी 12वें भाव से देखा जाता है, या आप किसी अस्पताल में अपनी सेवाएं दें, या फिर आप कहीं फॉरेन कंट्री में लोकेटेड हैं या किन्हीं फॉरेनर्स के साथ अगर आप डील करते हैं, तो ये 16 अगस्त तक का समय भी आपके लिए अच्छा निकलेगा, क्योंकि ये सारे कार्य करके आप 12वें भाव के नेगेटिव ऊर्जा को इस्तेमाल में ले आएंगे। नहीं तो अगर आप इन चीज़ों के साथ नहीं जुड़ते हैं तो 16 अगस्त तक का समय बहुत अकेलापन देने वाला होगा और आप कई बार इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में गलत निर्णय भी ले बैठते हैं। जिनकी भी जन्म कुंडली में लग्न स्थान का स्वामी 12वें भाव में बैठा होता है, आप ऐसे लोगों को हमेशा सोशल वर्क या किसी जन समुदाय की सेवा में अपना जीवन बिताते हुए देखेंगे। जैसे मदर टेरेसा हो गई, पूरा जीवन उन्होंने गरीबों की सेवा में गुजार दिया, या जितने भी आपके सोशल वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इवन कई डॉक्टर्स की कुंडली में भी इसी तरह का योग होता है। तो लग्न स्वामी 12वें से जाने वाले व्यक्ति का अगर जन्म कुंडली में इस तरह का योग हो तो व्यक्ति का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजर जाता है, उस व्यक्ति की अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती। तो यहाँ पर आपको इस अगस्त महीने में फ़ायदा उठाने के लिए 12वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपका महीना अच्छा निकलेगा, नहीं तो पहले 16 दिन आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। तो अगर आप शुक्र की स्थिति देखिए, शुक्र भी यहाँ पर 30 अगस्त तक यहीं बैठेगा
और शुक्र यहाँ पर दशम भाव का स्वामी होता है और तृतीय भाव का स्वामी होता है। तो तृतीय भाव से शॉर्ट जर्नीज देखी जाती हैं, तो तृतीय भाव का 12वें भाव में जाना यानी कि फॉरेन जर्नी दिखाता है। और दशम भाव के स्वामी का भी 12वें भाव में जाना यानी व्यक्ति कार्य से जुड़ी हुई किसी चीज के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए ट्रैवल कर सकता है अगस्त के महीने में। चूंकि लग्न स्वामी भी 12वें भाव में ही बैठा है और कर्म स्वामी भी 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसे लोग जो बहुत समय से विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, इमिग्रेशन वगैरह की चीजें देख रहे थे, उनके लिए भी ये बहुत फेवरेबल समय है अपना फॉरेन निकल जाने के लिए। और इस तरह से आप 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा का भी प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए 16 अगस्त तक का समय काफी चैलेंजिंग रहेगा। अभी एक बार गुरु पे दृष्टि डालते हैं। गुरु अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर वो पंचम भाव के भी स्वामी कहलाते हैं। तो जब भी गुरु 8वें भाव से निकल रहे हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, इसका मतलब है कि आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगस्त के महीने में, नहीं तो आपको नुकसान होगा। पंचम भाव का स्वामी अष्टम से जाना यानी सीधे सीधे शेयर बाजार में उतरने की संभावना को खारिज कर देता है। लेकिन अगर आप 5वें भाव से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे जो रोमांटिक पीपल हैं, कोई अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, किसी को डेट पे बाहर पूछना चाहते हैं, तो अगस्त के शुरुआत में ही अच्छा समय है। 3 से 6 अगस्त के बीच में आप इन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि पंचम भाव से आप व्यक्ति की सोचने की कैपेसिटी, क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस भी देखते हैं, तो वो उसका भी अष्टम भाव में जाने का मतलब है कि इनको बहुत लग के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अगस्त के महीने में कोई एग्ज़ाम निकालनी है या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगस्त के महीने में। एक बार शनि पे भी नज़र डालते हैं। शनि सी लग्न वालों के लिए छठे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं और ये लग्न स्वामी सूर्य के दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पर 16 अगस्त तक सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रत्युति में आ रहे हैं यानी ऑपोजिशन में आ रहे हैं। तो ये 16 अगस्त तक का समय सर्विस करने वालों के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। यहाँ पे आपका शत्रुओं के साथ अगर आप भिड़ने की गलती करते हैं तो आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि ये सूर्य और शनि का आपस में जो अपोजिशन होता है ये हमेशा बेकार ही होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग सर्विस या नौकरी में हैं, क्योंकि छठे भाव से हम नौकरी भी देखते हैं, इनको अपने से सुपीरियर लोगों से या लोग जो कि बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं इनके कंपनी में, कार्यस्थल पे, उनसे बहुत समस्या होने वाली है 16 अगस्त तक। सूर्य आपके पिता को भी दिखलाता है और प्रोफेशनल लेवल पे ये आपके हायर लेवल पे बैठे हुए बॉसेस को दिखाता है। तो उनके साथ किसी झगड़े में मत उतरिएगा 16 अगस्त तक, नहीं तो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। इसके बाद जब एक बार सूर्य यहाँ से निकल के लग्न स्थान में अपने ही घर में चले जाएंगे, तो आप काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखेंगे सेकेंड हाफ में अगस्त के। पर 16 अगस्त तक का समय सावधानी से गुजारिए अगर आप किसी सर्विस में या जॉब में हैं। अगस्त महीने में अगर आप देखेंगे तो 21 से 23 अगस्त का समय बहुत अच्छा है नौकरी या सर्विस के लिहाज से। पर कुल मिला के ओवरऑल टाइम चैलेंजिंग ही रहेगा नौकरी करने वालों के लिए। एक दृष्टि हम लोग बुध पे डालते हैं। बुध यहाँ पे लग्न स्थान से निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है बुध के लिए, क्योंकि सिंह लग्न वालों के लिए बुध द्वितीय और 11वें भाव का स्वामी होता है और दोनों ही भाव पैसे से जुड़े हुए हैं। 11वें भाव से आप हर तरह के लाभ देखते हैं जिसमें मॉनेटरी गेन्स आ ही जाते हैं, और द्वितीय भाव से आप स्वयं से कमाया हुआ सेल्फ अर्जित धन देखते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी का प्रथम भाव से गुजरना यानी आप स्वयं की कमाई हुई दौलत को अपने ऊपर खर्च करेंगे, या आपको ये इस समय धन का लाभ हो सकता है अपने परिवार के थ्रू। अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो आपको कुछ अच्छे पब्लिक स्पीकिंग के असाइनमेंट मिल सकते हैं इस समय में। और 11वें भाव आपका सोशल नेटवर्क या मित्रों को दिखाता है, तो उनसे भी इस समय धन लाभ होने की संभावना है। जब भी कोई ग्रह कहीं से भी गुजरता है तो वो वहां पर अपने जो भी राशियां होती हैं, जहां भी वो जिस भी भाव में बैठी हूँ, उनकी ऊर्जाएं खींच कर लाता है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके परिवार से या फिर आपके मित्रों से इस समय आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना है अगस्त के महीने में। एक नज़र मंगल पे भी डालते हैं। मंगल सिंह लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि एक एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होता है। यहाँ पे मंगल दशम भाव में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है, चतुर्थ स्थान को, जो कि एक अच्छी स्थिति कहलाती है। जब भी कभी कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव पर दृष्टि डालता है तो वो उसको काफी मजबूत कर देता है। तो चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई चीजों से रिलेटेड अगर आप व्यवसाय में हैं, जैसे अगर आप प्रॉपर्टी का काम देखते हैं, व्हीकल्स का काम देखते हैं, या फिर मंगल जिन चीजों का कार्येश कहलाता है, यानी कि केमिकल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, कोई भी तरह के
हथियार या इस तरह के डिफेंस सेक्टर में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा निकलेगा। प्रॉपर्टी और लैंड्स का अगर आपका व्यवसाय है तब भी, जब तक मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है यानी कि 10 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक, तब तक आपके लिए अच्छा समय निकलेगा प्रोफेशन वाइज। लेकिन ये मंगल से जुड़े हुए या चतुर्थ भाव से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए ही अच्छा होगा। बाकी लोगों के लिए इन ये समय प्रोफेशंस में कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगा। महीने में अब कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। ये दिन वो होते हैं जब चंद्र 6, 8, 12 से निकलता है। तो सिंह लग्न वालों के लिए अगस्त में ये दिन है 7 और 8 अगस्त, 15 और 16 अगस्त और 28 और 29 अगस्त। तो इन 6 दिनों को आप छोड़ दीजिए, और अगर आप इस महीने में फर्स्ट हाफ में ये नेगेटिव ऊर्जा को यूटिलाइज कर लें तो आपका अगस्त का महीना बहुत अच्छा निकलेगा। इसके बाद सितंबर में जब एक बार लग्न स्थान में लग्न स्वामी आ जाएगा तब तो फिर बात ही क्या है, फिर तो पूरा नज़ारा ही पलट जाएगा। तो ये आपकी कुल मिला के आपका इस महीने का समरी था। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।